Good morning, children. Now coming to next topic, that is sexual reproduction. Flowers help in sexual reproduction. When plant matures, it gives flowers and fruits, which in turn give seeds, and the seeds germinate to give new plants. The baby plant grows into mature plants and produces flower again. In most of the flowers, male and female parts are present in the same flower. During maturity, the female part produces ovum and the male part produces pollen grains. Flowers help in sexual reproduction. When plant matures, it gives flowers and fruits, which in turn give seeds, and that seed again germinate and forms plant. This baby plant grow into mature plant and produces flower again. Okay. In most of the flower, male and female parts are in the same flower. Okay. During maturity, the female part produces ovum, ova plural, and the male part produces pollen grains. फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. फ्लावर्स वो फ्रूट में चेंज होते हैं, फिर फ्रूट से सीड बनता है, फिर वो सीड जर्मिनेट होते हैं, फिर न्यू प्लांट होता है, फिर न्यू प्लांट से फिर फ्लावर निकलते हैं, फिर इस तरह से फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट से सीड, फिर न्यू प्लांट. ये प्रोसेस चलता रहता है. वह फ्लावर्स में मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में भी हो सकते हैं और अलग अलग फ्लावर में भी हो सकते हैं. ओके. फ्लावर में मेल ऑर्गन पॉलन ग्रेन्स होता है और फीमेल ऑर्गन ओवम होता है. ओके. और ये मैच्योर होने के बाद में ये ओवम और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. Transfer of pollen grain from the male part stamen to the female part carpel is known as pollination. And if the pollination is within the same flower, it is said to be self-pollination. If it is between two different flowers, it is called as cross-pollination. Male part of the flower is stamen. This is the male part of the flower, stamen. Okay. And this is the female part of the flower called carpel, which produces ovum after maturity, and it produces pollen grains after maturity. Okay. Transfer of the pollen grain from the male part to the female part is called as pollination. Transfer of pollen grain from the male part stamen to the female part carpel is called pollination. When pollination is between two different flowers, then it is called cross pollination, and when it is between the same flower, it is called self pollination. Okay. Pollination is of two types: self pollination between the same flower, and cross pollination between two different flowers. Okay. Cross pollination usually take place with the help of some agents like wind, water, insects and birds. During pollination, the pollen grains fall on the stigma, and slowly male cell pollen grain and female cell ovum fuse to form seed. These seeds, under favorable conditions, germinate and give rise to new plant. Cross pollination take place with the help of some agents like wind, water, insects and birds. क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किसके द्वारा होता है? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. विंड से कैसे होता है? जब हवा चलती है तो पॉलन ग्रेन मेल फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाता है. ओके. तब पॉलिनेशन हो जाता है. और वाटर से कैसे होता है? कभी कभी बारिश की वजह से होता है, पानी गिरता है तो मेल का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में गिर जाता है और फिर होता है. और इंसेक्ट्स के द्वारा भी होता है. कभी कभी इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स को फीमेल ऑर्गन में गिरा देते हैं.
और कभी कभी बर्ड्स के द्वारा होता है। कभी कभी बर्ड्स कैरी करती हैं मेल पॉलन ग्रेन्स को और उसको फीमेल उस पे गिरा देती हैं, फीमेल ऑर्गन पे पॉलन ग्रेन्स को गिरा देती हैं। और फिर क्या होता है, ये मेल पॉलन ग्रेन और फीमेल ओवम, पॉलन ग्रेन एंड ओवम, OVUM, ये फ्यूज करते हैं। ओके, ये दोनों फ्यूज करते हैं और फिर क्या बनता है, सीड बनता है। फिर यही सीड फिर जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बन जाता है। इस तरह से पॉलिनेशन होता है। ओके, पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करके ओवम के साथ में सीड बनाते हैं और सीड जब अच्छी कंडीशंस मिलती है, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, मतलब जब उनको वाटर, मिनरल, सनलाइट सब अच्छे से मिलता है, तब उस जिसमें उनको जर्मिनेट होने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए, अगर वो कंडीशंस उनको सुटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तब वो सीड वापस जर्मिनेट कर जाता है। ओके, और फिर न्यू प्लांट बनता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट ग्रोथ। From seed to seedling. Have you seen a baby plant? A very small baby plant is known as a seedling. Most plants grow from seeds. The seeds grow into seedling and under favorable conditions, seedling grow into new plants. A single plant produces many seeds, but all of them do not have a chance to grow or survive. Some of them are eaten by us, that is rice seeds, wheat seeds, gram seeds. Some of them are eaten by the birds and other animals. Some of them may not get right conditions to germinate, so they dry up and die. The seeds that receive all conditions favorable to grow survive and grow into new plants. Have you seen a baby plant? A very small baby plant is called a seedling. Plants germinate from seed. Suppose this is a, ये है सीड है, ठीक है। इसको आप पानी में या तो इसको आप पानी डालते रहो या फिर आप इसको जमीन में जब आप कर दोगे, जमीन में जब आप इसको गाड़ दोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पर से यहाँ ऊपर से हल्का प्लांट नीचे आ रहा है और यहाँ पर रेडिकल आएगा। ओके ओके, फिर रेडिकल से देखिए ये है प्ल्यूमूल और ये रेडिकल से नीचे रूट्स बन जाते हैं और प्ल्यूमूल से ऊपर शूट्स बनता है, मतलब ऊपर का पोर्शन ग्रो करने लगता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसके अंदर से प्लांट जो है वो निकलना स्टार्ट करता है। ओके चिल्ड्रन, और नीचे से ये रूट्स जमीन में जाने लगते हैं। ओके, फिर ये धीरे धीरे ये क्या है, ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं, सीड्स के कॉटिलेडन्स हैं। ये न्यू प्लांट देखिए ऊपर हो रहा है और नीचे ये सारे रूट्स बन गए हैं। ये इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। जब नीचे रूट्स आने लगते हैं और ऊपर बेबी प्लांट बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं सीडलिंग। ये एक तरह का बेबी प्लांट है। ओके चिल्ड्रन, एक सिंगल प्लांट बहुत सारे सीड्स उत्पन्न करता है। ओके, बट सभी नहीं ग्रो कर सकते हैं और सभी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वे ही सरवाइव करते हैं जिनको सूटेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट होने के लिए। कुछ सीड्स को हम खाते हैं जैसे कि वीट, राइस, ग्राम सीड्स एक्सेट्रा। कुछ सीड्स को बर्ड्स खाते हैं, कुछ सीड्स को एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, जब उनको राइट कंडीशन मिल जाती है जर्मिनेट होने के लिए तब वे ग्रो करते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो वे सीड्स सूख जाते हैं और मर जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड।
Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.